ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ مئی کے 29 اور ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام آج منعقدہ الگ الگ جمعی اجتماعات کے دوران ملکی حالات سمیت لداخ کے موجودہ حالات، سیاسی اور سماجی مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی. IKMT کے زیر اہتمام منعقدہ جمعہ خطبے میں حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے ملک کے موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور نیٹ امتحانات میں پیپر لیک کے واقعات پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی مار جھیل رہے ہیں، جبکہ تعلیمی نظام میں بدعنوانیوں نے نوجوان نسل کی مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ملک بھر میں اقلیتوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور اقلیتی طبقوں کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام شہریوں کے آئینی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور نفرت انگیز سیاست کا خاتمہ کیا جائے. لداخ کے سیاسی معاملات پر اظہار خیال کرتے ہوئے شیخ محمد حسین لطفی نے 22 مئی کو کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کے ساتھ ہوئی مذاکراتی نشست کو مثبت پیش رفت قرار دیا. تاہم انہوں نے دونوں تنظیموں پر زور دیا کہ وہ لداخ کے عوامی حقوق اور آئینی تحفظات کے حصول کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں. ساتھ ہی مرکزی حکومت سے اپنے وعدوں پر قائم رہنے اور لداخ کے عوام کے جذبات کا احترام کرنے کی اپیل کی. لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قائم کرنے کے معاملے پر انہوں نے کرگل کو نظر انداز کرنے کی شدید مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ اضلاع کی حد بندی کے دوران کرگل کے ساتھ ناانصافی برتی گئی. انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ سانک اور شکر چکتن جیسے اہم اور وسیع علاقوں کو ضلع کا درجہ نہ دے کر آبادی کے توازن کو متاثر کیا جا رہا ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر کے کرگل کے عوام کے ساتھ انصاف کیا جائے. خطیب نے نیشنل ہائی وے 301 کی خستہ حالی پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ سڑک کی ابتر حالت عوام کے لیے مسلسل مشکلات کا سبب بن رہی ہے. انہوں نے متعلقہ حکام کی عدم توجہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے جائز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل کر پرامن احتجاج کریں تاکہ حکام کو عوامی مشکلات کا احساس دلایا جا سکے. ادھر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جمعہ خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے عوامی و سماجی مسائل کو ابھارتے ہوئے کہا کہ UT انتظامیہ لداخ میں منشیات کے خاتمے کے پرعزم ہے. ایسے میں لداخی عوام کو بھی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے اس لعنت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی و اخلاقی تربیت دے تاکہ وہ سماج کے ایک ذمہ دار شخص بن سکے. سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کوڑا کرکٹ میں اسلامی مقدس کتابوں اور دیگر مقدسات کو پھینکنے کی شدید مذمت کی. انہوں نے قرآن اور تربت سید شہداء کو کوڑا کرکٹ کے ساتھ پھینکے جانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جس کسی نے بھی یہ فعل انجام دیا ہے اس سے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اگر جان بوجھ کر نہ دیا تو آئندہ دیکھ کر تحقیق کر کے بعد ہی گھروں کے کتابوں کو کوڑا کرکٹ میں ڈال دے. کرگل پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی مہم جاری رکھتے ہوئے ایک شخص کو نشے کی حالت میں گرفتار کیا ہے. پولیس کے مطابق بازار کرگل کی چوکس گشتی پارٹی نے گزشتہ شام تقریباً 7 بجے نیو بس اسٹینڈ کرگل میں ایک شخص کو مشتبہ حالت میں پایا جسے فوری طور پر تحویل میں لے لیا گیا. بعد ازاں مذکور شخص کو ڈی ایڈکشن سینٹر کرگل منتقل کیا گیا جہاں اس کا UDS ٹیسٹ کیا گیا. ٹیسٹ میں ہیروئن کے استعمال کی تصدیق ہوئی. اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کرگل میں FIR نمبر 32/2026 زیر دفعہ 27 NDPS ایکٹ زیر درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. کرگل پولیس نے کہا ہے کہ معاشرے میں منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی.
करगिल के नवाही इलाके कुर्बथांग में किसानों के खेतों में मवेशियों को खुला छोड़ने के वाकयात सामने आने के बाद मकामी किसानों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मुतासिरा किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ मकामी बाशिंदे अपने मवेशियों और गायों को खुला छोड़ देते हैं, जिसके बायस फसलों और ज़रई अराजी को भारी नुकसान पहुँच रहा है। मुतासिरा किसानों ने बताया कि मवेशियों के खेतों में दाखिल होने से हरे भरे खेत और फसलें तबाह हो रही है, जिसके नतीजे में इन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मुतल्लिक़ हुक्काम और समाजी इदारों से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालिबा किया कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि आइंदा फसलों को नुकसान से बचा जा सके। इस मामले पर आज इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा जुमा खुतबे के दौरान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मोहम्मद हुसैन लुत्फ़ी ने भी सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कुर्बथां इलाके में बाज़ अफराद की जानिब से मवेशियों को खेतों में छोड़ने के अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे गैर इंसानी और गैर इस्लामी फ़अल करार दिया। शेख लुत्फ़ी ने अपने खिताब में कहा कि किसी की मेहनत और रोज़ी रोटी को नुकसान पहुँचाना इस्लामी तालीमात के सरासर खिलाफ है और लोगों की फसलों को तबाह करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं हो सकता। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करें और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि दिन भर अपने गायों को दूसरों के खेतों में छोड़ देना और बाद में इन्हीं गायों का दूध हासिल करना शरीयत एतबार से गलत अमल है। इनके मुताबिक लुक़्मे हराम इंसान के ईमान और नस्ल दोनों पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो दूसरों की इमलाक, खेतों और फसलों का ख्याल रखें और ऐसे इक़दामात से मुकम्मल इज्तनाब करें जो समाजी इख्तिलाफ और तनाज़ा को जन्म दें। मुकामी किसानों, कोऑपरेटिव इदारों और सरहदी इलाकों में रोजगार को फरोग देने के लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और महकमे कोऑपरेटिव यूटी लद्दाख के दरमियान एक अहम मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस माहिदे के तहत मकामी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के जरिए सब्जियां और दीगर ज़रई अशिया खरीदी जाएगी, जिससे मुकामी किसानों को अपने पैदावार के लिए यकीनी मंडी दस्तियाब होगी। माहिदे पर ITBP के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल लक्ष्मण यादव और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव बानू परवा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में दस्तखत किए। यह माहिदा इब्तिदाई तौर पर 3 बरस के लिए नाफिज होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस इक़दाम को तारीखी करार देते हुए कहा कि इससे सरहदी इलाकों के किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और मकामी मईशत को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि मौजूदा माली साल के दौरान ITBP ने सब्जियों और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 21 लाख रुपये मुख्तस किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत तैयार किए जाने वाले ग्रीन हाउसेस किसानों को ज़्यादा सब्जियाँ उगाने में मदद देंगे, जिन्हें दूर दराज इलाकों में तैनात ITBP अहलकारों को फराहम किया जा सकेगा। लद्दाख में तवील मुद्दतियाबी और ज़रई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दरियाई सिंध पर मुल्क के पहले मुनफरिद रॉक चेक डैम का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने एप्सी के मकाम पर किया। ये डैम लेह से 44 किलोमीटर दूर 11,400 फुट की बुलंदी पर तामीर किया गया है। सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत कायम इस माहौल दोस्त मंसूबे का मकसद दरियाई सिंध में पानी की सतह बढ़ाकर आबपाशी और पानी की दस्तयाबी को बेहतर बनाना है। इस डैम की तामीर में दरिया और अतराफ से हासिल बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सीमेंट या कंक्रीट इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त मंसूबा बन गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये मंसूबा लद्दाख के दूर दराज इलाकों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़राअत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने महकमे आबपाशी को हिदायत दी कि 1 माह के अंदर मज़ीद 3 ऐसे चेक डैम तजर्बाती बुनियादों पर तामीर किए जाएँ। तकरीबन 200 फुट लंबे इस चेक डैम की तामीर सिर्फ 7 दिनों में मुकम्मल की गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 4 करोड़ लीटर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश पैदा हुई है। मुताहरी एजुकेशनल सोसाइटी की ज़ेर एहतमाम मुताहरी हाई स्कूल कुर्बथांग में एक शानदार इंटर स्पोर्ट मेगा इवेंट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले करगिल के मुख्तलिफ गैर सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की।
टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 14 स्कूलों के तलबा और तालिबात मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों। टूर्नामेंट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह मुताहरी एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन हाजी फिदा वजीर ने अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और मुख्तलिफ स्कूलों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुंतज़मीन के मुताबिक टूर्नामेंट में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 शामिल हैं। लड़कों के लिए वॉलीबॉल और हैंडबॉल के मुकाबले रखे गए हैं, जबकि तालिबात के लिए खो खो, हैंडबॉल और वॉलीबॉल के मुकाबलों का एहतमाम किया गया है। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने वॉइस ऑफ लद्दाख से गुफ्तगू करते हुए टूर्नामेंट को एक मुस्बत और बेहतरीन इक़दाम करार दिया। खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के खेलों के मुकाबले नौजवानों में सलाहियतों को निखारने, एतमाद बढ़ाने और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुंतज़मीन ने कहा कि स्पोर्ट्स इवेंट के इनक़ाद का मकसद तलबा में खेलों के रुझान को फ़रोग़ देना, बाहमी भाईचारे को मुस्तहकम करना और नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मी की जानिब राग़िब करना है। पेश कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मुल्क भर में बकरा मंडियों में ग्राहकों का जबरदस्त हुजूम देखने को मिला। ईद उल जुहा पर कुर्बानी के लिए लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मवेशियों की तलाश में मंडियों का रुख कर रहे हैं। वहीं महंगाई की वजह से इस बार बकरियों की कीमतें इस कदर ज्यादा है कि ग्राहक परेशान नजर आ रहे हैं। लखनऊ के दबगा बकरा मंडी के ताजिरों का कहना है कि इस सीजन में बकरे अच्छी तादाद में दस्तियाब हैं, जिनकी कीमतें तकरीबन 15,000 रुपये से शुरू होती हैं। हदमी कीमत बकरे के वजन, नस्ल और इनकी खूबसूरती पर मुनहसर है, लेकिन बढ़ती हुई लागत की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई ने इस त्यौहार के मौसम में खरीदारों के पास बहुत कम किफ़ायती मुतबादिल छोड़े हैं, जिससे इनके इंतखाब करना मुश्किल हो गया है। महंगाई ने हर चीज की कीमतें बढ़ा दी हैं। कुर्बानी के जानवर भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, जिससे त्यौहार का जोश थोड़ा फीका पड़ जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के डील कॉरपोरेशन के स्टॉक खरीदने के चंद हफ्तों बाद पेंटागन ने कंपनी को $9.7 अरब का मुआहिदा दे दिया है। ये मुआहिदा अमेरिकी फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियों और कोस्ट गार्ड के लिए मैक्रो सॉफ्टवेयर की फराहमी पर मुहित है। मुआहिदे के ऐलान के फौरन बाद डील के स्टॉक में तेजी आ गई। नाक़दीन के मुताबिक ट्रंप ने 10 फरवरी को $1 से $5 मिलियन के डील स्टॉक खरीदे। 9 दिन बाद जॉर्जिया में आवाम से डील को कंप्यूटर खरीदने की अपील की और मार्च में मजीद 3 बार स्टॉक खरीदे। वॉच डॉग तंजीमों का कहना है कि ये मफादात के टकराव की वाज़ेह अलामत है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।